مجھے اب چلنا چاہیے یار، بہت دیر ہو گئی ہے۔ اس نے ہاتھ میں پہنی گھڑی میں وقت دیکھا جس میں سوئیاں 2 کے ہندسے پر چکمکا رہی تھی۔ ہلکی سی پریشانی اس کے چہرے پر نظر آ رہی تھی، اور آج سے پہلے وہ کبھی اتنی رات گئے حویلی سے باہر نہیں رہا تھا، لیکن آج اس نے سامنے بیٹھے دوستوں پر نگاہ ڈالی۔ سارے کے سارے بدیسی دوست آج ہی جمع ہو گئے تھے اور اسے اپنے ساتھ بٹھائے بڑی دیر سے باتوں میں مگن تھے۔ بیٹھ جا یار، کہاں جائے گا؟ ساری زندگی تو حویلی میں ہی گزار دی ہے تو نے۔ اتنی اچھی پرسنالٹی، اتنی اعلیٰ تعلیم ہونے کے باوجود یہی حویلی چھوڑ کر کہیں نہیں جاتا۔ سارے یار دوست باہر کے ممالک کو نکل گئے، لیکن ایک تو ہے کہ جس نے اپنی پوری زندگی اس حویلی اور اپنے والدین کو دے ڈالی۔ بس آج کی رات تو ہمارے نام کر دے۔ امریکہ سے آئے اس کے دوست مکیش نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر دوبارہ بٹھایا تو وہ بے بسی سے مسکراتا دوبارہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ یہ سچ تھا کہ دوستوں کی قربت میں بیٹھے وقت کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اماں جان جب تک اس سے مل نہ لیں گی وہ سوئیں گی نہیں۔ اس کے چہرے پر مسلسل پھیلتی پریشانی کو دیکھ کر مکیش نے دوبارہ کہا تھا، اچھا ٹھیک ہے یار، اگر تو گھر جانا ہی چاہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن دیکھ آج اسے انکار مت کرنا۔ آج ہم لمبے عرصے کے بعد ملے ہیں، اسے میں امریکہ سے خاص تم لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں۔ مکیش نے بیگ میں سے سرخ رنگ کی کانچ کی بوتل نکالی تو ابراج ٹھٹک سا گیا۔ ارے نہیں یار، میں نہیں پیتا، اس نے واضح طور پر منع کیا اور ایک دفعہ پھر اٹھنا چاہا، لیکن سارے ہی دوستوں نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر واپس بٹھا لیا۔ ارے نہیں پیتا تو چھوڑنا یار، آج پی لے، آج پتہ تو چلے کہ تیرے اندر کتنی برداشت ہے کہ اس کا چڑھنے سے تو روک پاتا ہے یا نہیں۔ بوتل سامنے رکھے مکیش نے چیلنج کرتی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ خانزادہ ابراج کے ماتھے کی رگیں تن گئی۔ چیلنج، اور وہ بھی اس انداز میں؟ وہ تو جان پر کھیلنے کا بھی ہوتا تو وہ قبول کرتا، یہ تو صرف ایک معمولی سا مشروب تھا جسے حلق سے نیچے اتارنا تھا۔ گہری نگاہوں سے مکیش کو دیکھتا ابراج نے گلاس آگے کر دیا۔ مکیش کے لبوں پر بڑی گہری مسکراہٹ تھی۔ بوتل کو کھولتے ہی اس نے مشروب کانچ کے گلاس میں اڈیلنا شروع کر دیا۔ بس یا پھر اور ڈالوں؟ آدھے سے زیادہ گلاس بھرتے اس نے مانی خیز نگاہوں سے ابراج کو دیکھا جو بالکل خاموش بیٹھا گلاس کو تک رہا تھا۔ بغیر ایک لفظ کہے اس نے گہری نگاہوں سے ان سب کے چہرے کو دیکھا اور گلاس اٹھا کر منہ سے لگا لیا تھا۔ اسے ایک غٹا غٹ مشروب پیتے دیکھ کر ان سب نے زوردار انداز میں تالیاں بجائیں۔ واہ براج، تو نے ثابت کر دیا کہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، بس اب ہم تجھے گھر جانے سے نہیں روکیں گے، تو نے دوستی کا حق ادا کر دیا۔ مکیش نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر بولا تھا۔ وہ اپنے چہرے کے زاویوں کو بگڑنے سے بچاتا اٹھ کھڑا ہوا تھا، اور سچ تھا کہ اس نے پہلی دفعہ یہ ممنوعہ مشروب چکھا تھا۔ دوستوں سے ہاتھ ملاتے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور ماحول میں ٹھنڈ بڑھ گئی تھی۔ چاروں جانب دھند چھائی ہوئی تھی۔ وہ لوگ خانزادہ ابراج کے ڈیرے پر موجود تھے۔ دوست بھی اسے جاتا دیکھ کر ایک ایک کر کے اٹھنے لگے۔ وہ اپنی سفید شال کو کندھے پر ڈالتا اپنی سیاہ پراڈو میں آ بیٹھا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کر کے اس نے اس کا رخ حویلی کے راستے پر ڈال دیا۔ ابھی اسے ڈرائیو کرتے ہوئے تھوڑی دیر گزری ہی تھی کہ اسے بے طرح سے گھبراہٹ اور گرمی محسوس ہونے لگی۔ حالانکہ باہر کا درجہ حرارت 3 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ گاؤں میں اس وقت بے حد ٹھنڈ تھی اور یہ دسمبر کی ایک ٹھٹھرتی ہوئی رات تھی، مگر ابراج کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس کے اندر کسی نے آگ کا الاؤ بھڑکا دیا ہو۔ مسلسل ماتھے پر آتے پسینے کو صاف کرتے وہ نظر سامنے جمائے ہوئے تھا اور بار بار سامنے کا منظر دھندلا جاتا۔ دانتوں پر دانت جمائے وہ کوشش کر رہا تھا کہ اس کا دماغ نشے کی گرفت میں نہ آئے۔ حویلی کے دروازے پر قدم رکھتے تک وہ اس کا پورا وجود پسینے میں نہا چکا تھا۔ شال اس نے گاڑی میں ہی پھینک دی اور تیزی سے دروازہ بند کرتا اندر کی سمت چلا گیا۔ راہداری میں کھڑے ہو کر اس نے ایک دفعہ پلکیں جھپکا کر اپنے کمرے کا رخ متعین کیا اور اس کا کمرہ دائیں طرف تھا۔ اس کی قسمت اچھی تھی کہ وہ لڑکھڑا کر گر نہیں پڑا۔ مضبوطی سے قدم جماتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھا، جب ہی وہ بری طرح سے چونکا۔ درمیان میں اماں جان کا کمرہ آتا تھا اور اس وقت اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اسمارا بیگم باہر جھانک رہی تھی۔ آ گیا میرا شہزادہ، آج بڑی دیر لگا دی، کب سے میں تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ اماں جان کے لہجے میں انوکھی سی چمک تھی۔ ابراج محسوس نہ کر پایا، وہ تو ان کے قریب جانے سے بھی کترا رہا تھا کہ کہیں وہ اس کے منہ سے آتی مخصوص مہک کو سونگھ نہ لیں، اور اپنی کیفیت سے وہ خود بھی گھبرا گیا تھا۔ اسے کچھ ایسا چاہیے تھا جو اس کے نشے کے اثر کو ختم کر سکتا تھا۔ اماں جان، کیا ایک کپ چائے مل جائے گی؟ اس نے محتاط انداز میں پوچھا۔ اسمارا بیگم کھل کر مسکرا دی۔ کیوں نہیں بیٹا، ابھی اپنے کمرے میں جاؤ، میں چائے بھجوا رہی ہوں۔ ابراج اپنی کیفیت پر قابو پانے میں مصروف تھا۔ سمجھ نہ سکا کہ آخر ماں کے چہرے پر رات کے 2 بجے اتنی گہری مسکان کیوں تھی۔
انہیں سلام کرتا وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کرتے ہی اس نے گرمی سے مجبور ہوتے اپنی قمیض اتار پھینکی۔ اے سی آن کرتے بالکل اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ کیا ہو گیا تھا مجھے؟ ذرا سا دوستوں نے مجھے بہکایا اور میں اتنی بڑی غلطی کر بیٹھا۔ جانتا بھی ہوں کہ یہ سب حرام ہے۔ دونوں ہاتھوں میں وہ سر پکڑے بری طرح سے پچھتا رہا تھا۔ آس پاس کے منظر اب اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے۔ قریب تھا کہ وہ وہیں گر کر گہری نیند سو جاتا جب دروازے پر دستک ہوئی۔ ابراج نے چونک کر دیکھا اور شاید اما جان ہوں، لیکن دروازے سے اندر کوئی اور داخل ہوا تھا۔ بمشکل 18 برس کی ایک نازک سی لڑکی جس کی دودھیا رنگت اس کے سرخ رنگ کے جوڑے میں دمک رہی تھی۔ اس نے سلیقے سے سر پر دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔ ہاتھوں میں پہنی چوڑیوں کی ہلکی سی کھنک کمرے میں گونجی تو ابراج کی سوئی ہوئی حصیں بیدار ہوئیں۔ آپ کی چائے؟ وہ چائے لے کر سیدھا اس کے پاس چلی گئی۔ ابراج نے کپ لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا اور تبھی وہ چونکا۔ اسے لگا جیسے سامنے کھڑی لڑکی کا پورا وجود کپ کپا رہا تھا۔ ابراج نے یوں ہی نگاہ اٹھا کر اس کا جائزہ لیا اور ساکت رہ گیا۔ اتنا مکمل حسن، اتنی کاملیت کون تھی؟ وہ مبہوت اسے تکتا رہ گیا۔ اس نے آنکھوں میں کاجل ڈال رکھا تھا۔ سنہری آنکھیں جھکی ہوئی تھی اور اس کی پلکیں لمبی تھی جن کے آخر میں خم بنے ہوئے تھے۔ اونچی اور ستھوں ناک اور سرخ تراشیدہ لب وہ حسن کے سارے معیاروں پر پوری اترتی تھی۔ ابراج بے سخت اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چائے لے لیں پلیز، لڑکی نے ایک دفعہ پھر کہا۔ ابراج نے چائے پکڑنا چاہی لیکن اسی پل اس کا سر بری طرح سے چکرایا تھا۔ وہ اپنی ہی جھونک میں اس لڑکی کو لیتا سیدھا فرش پر جا گرا۔ نیچے گرتے ہی وہ بری طرح تڑپتی رہی اور اس کی آنکھوں میں پھیلتا خوف ابراج کو صاف نظر آیا، مگر وہ اپنے ہوش اور حواس میں ہوتا تو خود کو روکتا۔ شاید اسی لیے شراب کو حرام کہا گیا ہے کہ وہ حرام اور حلال، صحیح اور غلط ہر چیز کا فرق مٹا دینے کی طاقت رکھتی ہے۔ خانزادہ ابراج کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا اور سامنے کھڑی اس حسینہ کے نرم و نازک لمس نے جیسے شراب کے نشے کو دو آتشہ کر دیا تھا۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی اور شاید سسکتے ہوئے کچھ کہہ بھی رہی تھی، مگر خانزادہ ابراج کی سماعتوں پر تو جیسے کسی نے پردے ڈال دیے تھے۔ پلکیں موندتے اس نے اپنی گم ہوتے حواسوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے۔ رات گزرتی رہی۔ دسمبر کے قہرے نے پورے گاؤں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور حویلی میں گہرا سناٹا تھا۔ کئی گھنٹے گزرے تو حویلی کو اس شاندار کمرے میں سے نیم تاریکی میں دبی دبی سسکیاں بلند ہونے لگیں۔ وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ روتی رہی اور سسکیاں تھمی تو وہ خود کو سمیٹتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ دروازے سے باہر جاتے پیچھے پلٹ کر اس نے ایک نفرت بھری نگاہ بے خبر سوتے خانزادہ ابراج پر ڈالی تھی۔ تمہارے متعلق میں غلط تھی، تم وہی ہو جو میری ماں نے بتایا تھا۔ آنسو بھری آنکھوں کو ہاتھوں سے صاف کرتے وہ خاموشی سے رات کی تاریکی میں گم ہو گئی۔ رات گزر گئی، دن چڑھایا اور سورج کی شعائیں کھڑکی کے پردوں سے ٹکرا کر اندر زمین پر لیٹے خانزادہ ابراج پر پڑی تو اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولی۔ سر بھاری ہو رہا تھا اور طبیعت پر عجیب سا بوجھل پن طاری تھا۔ کروٹ لیتے اس نے بے اختیار اس لمحے کو کوسا جب اس نے کل رات اس گلاس کو ہاتھ لگایا تھا۔ سیدھے لیٹتے کافی دیر تک وہ پلکیں جھپکاتا رہا اور سامنے چھت پر ایک خوبصورت فانوس لٹک رہا تھا۔ خانزادہ ابراج اس پر نگاہیں ٹکائے اپنے حواسوں کو مجتمع کر رہا تھا اور دوستوں کے ساتھ ڈیرے پر ان کی باتیں، سرخ مشروب کا وہ گلاس اور چائے کی پیالی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ چائے کی پیالی ذہن میں آتے ہی اور بہت کچھ بھی اس کے ذہن میں آیا تھا۔ اوہ میرے خدا، یہ سب کیا ہو گیا؟ ماتھے پر ہاتھ مارتے وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے ایک بے یقین نگاہ اپنے کمرے میں نظر آتے منظر پر ڈالی جہاں وہ لیٹا تھا۔ وہاں زمین پر سرخ رنگ کا ایک آنچل بے ترتیبی سے پڑا ہوا تھا اور کچھ کانچ کی ٹوٹی چوڑیاں بکھری ہوئی تھی۔ ابراج نے سختی سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ یہ سب میں نے کیا کر دیا؟ اوہ میرے خدا، میں انسان سے جانور کب بن گیا؟ بری طرح سے پچھتاتے اس نے دائیں ہاتھ کا مکہ بنا کر پیچھے دیوار پر مارا تھا۔ تکلیف کی ایک لہر اس کے پورے وجود میں جاگی مگر اس کی شرمندگی کو کم نہ کر سکی تھی۔ وہ کبھی اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا اور کبھی اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرتا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں شدید بے چینی ابھر آئی تھی اور اس کا سفید لباس ملگجا اور سلوٹ زدہ تھا، مگر کچھ اور تھا جو اس کے دل کو تکلیف دے رہا تھا۔ کمرے میں موجود وہ سرخ آنچل جس نے اس کے دل کی دنیا اندھیر کر دی تھی۔ یہ سب میں نے کیا کر دیا؟ یہ تھا میرے اندر کا وہ انسان جو بظاہر شرافت کے پردے کے پیچھے چھپا رہتا ہے۔ کتنا گھمر تھا مجھے کہ میں اس حویلی کے باقی لوگوں جیسا نہیں، ان لوگوں جیسا نہیں جن کے نام سے یہ دنیا کانپ جاتی ہے، جس سے میں نفرت کرتا آیا ہوں۔
आज मैं भी उन्हीं के सफ में जाकर खड़ा हो गया हूँ। लब भींचते वो मुसलसल उसी सुर्ख दुपट्टे पर निगाहें जमाए खड़ा था। थक हार कर वो करीबी रखी कुर्सी पर बैठ गया। जो कुछ उसने बिगाड़ दिया था अब वो दुरुस्त होने वाला नहीं था। न जाने कितनी देर गुजर गई। मुलाजिम ने दरवाजे पर दस्तक दी तो वो अपने ख्यालों से जागा। वो उसे इतला देने के लिए आया था कि नीचे इस्मारा बेगम उसे याद कर रही हैं। गहरी सांस लेता हुआ वो सोफे से उठ खड़ा हुआ और ना मालूम वो कौन थी। जहन में सिर्फ उसके आंसू भरी आंखें और कपकपाते लब ही रह गए थे। उसे तो उस अनजान हसीना का नाम तक मालूम न था। अलमारी से अपने कपड़े निकालकर वो सीधा वॉशरूम में जा घुसा और शॉवर के नीचे खड़े होकर वो अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। मगर कल रात के मनाजिर बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। पूरा आधा घंटा वॉशरूम में लगाकर वो बाहर निकला तो उसके जहन में बस एक ही परेशानी थी, आखिर वो उसका सामना कैसे करेगा। जाने वो कौन थी, मुझे उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। वो जो भी थी सज़ा मेरे लिए तजवीज़ करे, मैं इस सज़ा को मानने के लिए तैयार हूँ। खानज़ादा इब्राज ने आईने में अपने अक्स को देखते फैसला कर लिया। हाथों में घड़ी बांधते वो अपनी स्याह शॉल कंधों पर डाले नीचे चला आया था और उसे सीढ़ियों से नीचे उतरता देखकर इस्मारा बेगम के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। अपने ऊंचे लंबे कद वाले उस पोते को देखकर हमेशा उनके दिल में ठंडक उतर जाया करती थी। वो उन्हें दादी जान की बजाय अम्मा जान ही कहा करता था, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक उसने अगर अम्मा के रूप में किसी को देखा था तो वो इस्मारा बेगम ही थी। उस वक्त भी वो उनके सामने प्यार लेने के लिए झुका तो इस्मारा बेगम ने मोहब्बत से उसका माथा चूमा। आज बहुत देर लगा दी मेरे बेटे ने, वरना तो सुबह फजर की अजानों के साथ ही उठकर हवेली से निकल जाते हो। इतनी जिम्मेदारी अपने कंधों पर क्यों डाल रखी है? शादी क्यों नहीं कर लेते और घर क्यों नहीं बसा लेते? माजी के जख्म कब तक सीने पर लेकर जियोगे? मोहब्बत से कहते कहते वो जज्बाती हो गई थी। गहरी सांस लेता खानज़ादा इब्राज उनके सामने सोफे पर बैठ गया। अचानक इस्मारा बेगम चौंकी। इब्राज के कंधे झुके हुए थे और यहाँ तक कि उसने सर और आंखें भी झुका रखी थी। उसके हाथों में एक अजीब सी लर्जिश थी। तुम किस बात पर परेशान हो इब्राज? इस्मारा बेगम ने पूछा तो उसने अपनी सुर्ख आंखें उठाई। मुझे इसे जब्त की इंतहाओं पर था। मुझे माफ़ कर दे अम्मा जान, मुझे यकीन नहीं आता कि ये सब कुछ मैंने किया है, वो टूटे हुए लहजे में बोला था। इस्मारा बेगम का दिल थक सा रह गया। और तुम्हें इब्राज किसी बात की परेशानी है क्या? मुझे डराओ मत बेटा। उनका बूढ़ा वजूद लरस कर रह गया। इब्राज ने बेबस निगाहें उठाकर उन्हें देखा और वो अपनी अम्मा जान को मजीद तकलीफ नहीं दे सकता था। अम्मा जान, वो लड़की जो मेरे कमरे में चाय लेकर आई थी वो कौन थी? उसे आपने भेजा था ना? पूरी उम्मीद से इस्मारा बेगम को देखता वो दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि इस्मारा बेगम कहें कि उन्होंने तो किसी लड़की को नहीं भेजा और ना ही कोई लड़की चाय लेकर गई थी। काश ये सब कुछ उसका वहम हो। मगर उसका ख्याल तब टूटा जब इस्मारा बेगम ने सर हिलाया कि हाँ, मैंने शबाना को तुम्हारे कमरे में भेजा था। वो उस वक्त जाग रही थी, क्यों से क्या हुआ? इस्मारा बेगम ने जल्दी से पूछा। उनके लहजे में खौफ हलकोरे ले रहा था, मगर अपनी ही सोचों में गुम इब्राज समझ ना आया कि वो कौन थी। अम्मा जान कहाँ है वो? मुझे उससे मिलना है। वो कब से काम कर रही है यहाँ? हवेली में एक साथ ही उसने कई सवाल कर डाले। इस्मारा बेगम चंद लम्हे तक उसे देखती रही और फिर गहरी सांस लेकर रह गई, क्योंकि अपने अंदर एक अजीब किस्म की बेकरारी हो रही थी। इतनी बड़ी सच्चाई उन्होंने हमेशा से इब्राज से छुपा रखी थी, मगर अब वक्त आ गया था कि वो उसे वो सच्चाई बताती जो वो उससे कब से छुपाती फिर रही थी। उनकी बूढ़ी आंखों में नमी उतरने लगी और उन्होंने एक तायराना निगाह हवेली पर डाली। शानदार हवेली थी, मुलाजमों की रेल पेल थी, दौलत ताकत किसी चीज की कमी ना थी, मगर एक ऐसी वहशत थी जो उन हवेली के दरो दीवार में रच बस चुकी थी। उन्होंने इब्राज की सिमत देखा और वो उसकी निगाहों में छुपी उस हवेली के लिए नफरत पहचानती थी। माजी के वो दाग जो वो दोनों ही किसी के सामने नहीं लाते थे, वो अंदर ही अंदर उन्हें खाए जा रहे थे। और इस्मारा बेगम ने सख्ती से अपनी आंखें मींच ली। उन्हें याद था कि इब्राज कबाब खानजादा जुबैर कितनी पुरजलाल शख्सियत का मालिक था। पूरे गांव वाले उसके नाम से थर थर कांपा करते थे और यहाँ तक कि हवेली वाले भी उनका नाम आते ही सहम जाते। खुद इस्मारा बेगम माँ होने के बावजूद जुबैर खानजादा साहब के सामने बात करते हुए झिझक जाया करती। वो था ही ऐसा, मगर जिस वक्त उसके यहाँ बेटे की विलादत हुई वो खुशी से पागल हो रहा था। इस्मारा बेगम ने अपने पोते का नाम इब्राज रखा। वो राज करने के लिए ही तो पैदा हुआ था। दिन गुजरते रहे और हवेली में सब कुछ ठीक ठाक था। यूं लगता था कि खुशियां बनकर सूरत उन सब के ऊपर बरस रही है, मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। इब्राज 5 बरस का था जब एक रोज अपनी बेटी के कमरे के सामने से गुजरते इस्मारा बेगम बुरी तरह से ठटक गई। कमरे का दरवाजा खुला
और अंदर से उनकी बेटी की आवाज़ आ रही थी, तुम फिक्र मत करो मिनहाज, अगर मेरी हवेली वालों ने तुम्हारा रिश्ता कबूल ना किया तो मैं तुम्हारे साथ घर से भाग जाऊंगी। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों का मर्तबा क्या है, उनके पास कितनी दौलत है, मुझे तो तुमसे मोहब्बत है और मैं शादी सिर्फ तुम ही से करूंगी। वो पुरस्म लहजे में कह रही थी। असमारा बेगम अंदर तक कांप कर रह गई और ये उनकी 20 साला बेटी की आवाज़ थी जिसे उन्होंने हवेली में सबसे टक्कर लेकर कॉलेज में तालीम हासिल करने के लिए भेजा था। वो दिल पर हाथ रख के वहीं बैठती चली गई। अंदर उनकी बेटी मजीद भी कुछ कह रही थी और जो कुछ वो कह रही थी उसे सुनना असमारा बेगम की बस की बात ना था। उन्हें पता ही न चला कि कब उनकी बेटी एक अनजान आदमी की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई। वो कोई वेटर था जिससे निम्रा की मुलाकात रेस्टोरेंट में हुई। रेस्टोरेंट में ही वो उसे अपना दिल दे बैठी थी और शायद वो लड़का भी निम्रा की मोहब्बत में गिरफ्तार था, इसीलिए तो उन दोनों का फ़ोन पर राब्ता था। और असमारा बेगम दिल पर पत्थर लिए वापस चली गई। अच्छी तरह से पता था कि एक वेटर का रिश्ता उनके शौहर और ज़ुबैर खानज़ादा कभी कबूल नहीं करेंगे। निम्रा के दिल की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती थी, मगर उन्होंने कोशिश करने की ठानी। रात जब सब सो गए तो वो खामोशी से अपनी बेटी के कमरे में चली गई। वो माँ को सख्त चेहरे के साथ अंदर दाखिल होता देखकर बुरी तरह से चौंकी। आप यहाँ अम्मा जान? उसने पूछा तो असमारा बेगम ने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर लगा दिया। तुम्हें अपने एतमाद के साए में कॉलेज भेजा था मैंने, मगर तुमने ये गुल खिलाया जैसे घर से भाग जाने की तरकीब दे रही हो। उसे ये नहीं कह सकती कि वो अपने वालिदैन के साथ तुम्हारा रिश्ता मांगे। यहाँ आए हो सकता है कि तुम्हारे बाप और भाई रिश्ते के लिए हाँ कर दें। असमारा बेगम की आवाज़ में सख्ती थी और निम्रा की आंखों में आंसू भरे। वो नहीं आएगा अम्मा जान, और नहीं भाईजान मेरी वहाँ कभी शादी करेंगी। आप उनको नहीं जानती क्या? वो तड़प कर बोली थी, मगर असमारा बेगम ने आगे बढ़कर उसका गला दोनों हाथों में दबोच लिया। खुद ही फैसला करके बैठी है, मेरे सामने फ़ोन कर उसे और उसे बोल के कल दोपहर अपने वालिदैन को रिश्ते के लिए भेजे। आगे मैं जानूं और मेरा काम। असमारा बेगम अंदर से बुरी तरह से लरस रही थी। बेटी कोई गलत कदम ना उठा ले, ये खौफ उन्हें वहशत ज़दा किए दे रहा था। निम्रा ने कपकपाते हाथों से मोबाइल उठाकर असफंद का नंबर मिलाया और दूसरी कॉल पर ही उसने फ़ोन रिसीव कर लिया। असमारा बेगम ने फ़ोन निम्रा के हाथ से छीन लिया और दो टोक अंदाज में मिनहाज को अगली दोपहर रिश्ता लाने के लिए कह डाला। वो धुन का पक्का लड़का था। अगली दोपहर उसके वालिदैन रिश्ता लेकर हवेली में मौजूद थे। सादा से पढ़े लिखे लोग जिनके चेहरे से गुर्बत टपक रही थी और वो सब अपने बेहतरीन लिबास पहन कर आए थे, मगर उनके लिबास हवेली के मुलाजमीन से भी मेल ना खा रहे थे। लड़का भी साथ ही मौजूद था और दुबला पतला अच्छी शक्ल सूरत पकड़ वो भी पढ़ रहा था और साथ साथ एक होटल में बतौर वेटर नौकरी करता था ताकि घर वालों को सपोर्ट कर सके। ज़ुबैर खानज़ादा ने एक नफरत भरी निगाह उन पर डाली। मुझे तो हैरत है कि आप लोगों ने हवेली में कदम रखने की जुर्रत भी कैसे की? मेरा नाम सुना है कभी? हम रिश्ता अपने हम पल्ला लोगों में करते हैं, और अगर हम पल्ला लोग ना भी हों तब भी हम फकीरों में तो अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकते। आज रिश्ता लाने की जुर्रत की है, आइंदा यहाँ कदम भी ना रखना। ज़ुबैर खानज़ादा ने दो टोक अंदाज में उन्हें वाज़ेह जवाब दे दिया। सोफे पर बैठी असमारा बेगम पहलू बदल कर रह गई। हमें एक दफ़ा आपस में बैठकर बात कर लेनी चाहिए ज़ुबैर, हो सकता है कि रिश्ता निम्रा के लिए अच्छा हो, उन्होंने कहने की कोशिश की। ज़ुबैर खानज़ादा ने पलट कर एक तिरछी निगाह माँ पर डाली और माँ के कहने से ही वो बात समझ गया था। चंद लम्हे तक वो जांचती हुई नज़रों से माँ का जायज़ा लेता रहा और जो फैसला होना था हो गया। हमें आपस में कोई बात करने की ज़रूरत नहीं, और अगर इस हवेली में से किसी की रजामंदी है इस रिश्ते के लिए तो मैं उसे अपने हाथों से मौत के घाट उतार दूंगा। तनफ्फुर भरे लहजे में कहते वो अपनी जगह से उठ खड़े हुए थे। उन्होंने असमारा बेगम को वाज़ेह पैगाम दे दिया था कि वो किसी सूरत भी इस रिश्ते के लिए हामी नहीं भरेंगे। सोफे पर उनके साथ 5 साला इब्राज भी बैठा था। वह समझदार और मासूम सा बच्चा था और उसकी स्याह आंखों में ज़हानत थी। उसे समझ आ गया था कि हवेली में कोई बहुत ही गंभीर मामला चल रहा है। मिनहाज और उसके वालिदैन दुखी दिल के साथ पलट गए थे और उस रात निम्रा ने चिल्ला चिल्ला कर रोते हुए अपनी माँ से कहा कि वो उसे जहर दे दे, क्योंकि वो मिनहाज के बगैर नहीं रह सकती। असमारा बेगम की आंखों में आंसू उतरने लगे। उन्हें मिनहाज पसंद आया था और वो मेहनती लड़का था। अगर उसके पास दौलत न थी तो ये उसका कसूर न था, मगर वो जानती थी ज़ुबैर खानज़ादा के सामने उनकी एक नहीं चलेगी। और बेटी को सब्र की तलकीन करते वो पलट कर अपने कमरे में चली गई। उन्हें पता था कि उनकी बेटी शदीद गम और गुस्से में है, उसे कुछ दिन तक ना छेड़ना ही मुनासिब होगा, और उन्होंने किया भी। मगर तीसरे दिन उनका ज़ब्त जवाब दे गया। निम्रा को कहो कि मैं खाने की मेज़ पर उसका इंतज़ार कर रही हूँ, जाओ बुला कर लाओ उसे, उन्होंने मुलाजमा से कहा। और इब्राज उनके पास ही कुर्सी पर बैठा गौर से दादी का चेहरा देख रहा था।
थोड़ी देर के बाद मुलाजिमा हवास बाख्ता अंदाज में वापस आई। कमरे में कोई नहीं है जी, कपड़ों वाली अलमारी खुली है और मेज पर यह कागज रखा हुआ था। मुलाजिमा ने कागज अस्मारा बेगम की जानिब बढ़ाया। वो जो फटी फटी निगाहों से मुलाजिमा को देख रही थी। कपकपाते हाथों से उन्होंने कागज ले लिया और कागज नहीं था, कोई बॉम्ब था जो किसी ने उठाकर अस्मारा बेगम के वजूद पर दे मारा। निम्रा ने साफ लिखा था कि वो मिनहाज के बगैर नहीं रह सकती और उससे ये दौलत और हवेली नहीं चाहिए, इसीलिए वो उन सबको छोड़कर मिनहाज के साथ कहीं जा रही थी। उसने साफ लिखा था कि मिनहाज के वालिदैन को परेशान करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो खुद अपनी मर्जी से जा रही है और वो कभी पलट कर नहीं आएगी। खत उनके हाथ से छूट कर नीचे जा गिरा था। जो तूफान आने वाला था उन्हें उस तूफान का अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया था। किसी ने नीचे झुककर उस खत को उठाया। अस्मारा बेगम ने फटी फटी निगाहों से उसे देखा और वो ज़ुबैर खानज़ादा थे जो खाने के लिए अभी अभी डाइनिंग रूम में आए थे। खत पर निगाहें दौड़ाते उनका चेहरा सुर्ख हो गया, आंखों से लहू छलकने लगा और बगैर एक लफ्ज़ कहे वो खत लपेट कर जेब में डालते उल्टे कदमों वापस चले गए। अस्मारा बेगम ने सख्ती से आंखें मींच ली। क्या हुआ आपको अम्मा जान? इब्राज ने आगे बढ़कर कहा तो अस्मारा बेगम ने उसे खुद से लगा लिया। कयामत आने वाली है बेटा, मैं नहीं जानती कि कब आएगी और कैसे, मगर आएगी ज़रूर। वो फूट फूट कर रोटी और उनकी सोच दुरुस्त थी। रात तक हवेली में कोहराम मच चुका था। ज़ुबैर खानज़ादा ने मिनहाज के बूढ़े वालिदैन को उनके घर से उठवा लिया था। हमें कुछ नहीं पता साहब, मिनहाज तो दूर उससे घर ही नहीं आया। हमें नहीं पता वो आपकी बहन को लेकर कहाँ गया है, पता होता तो ज़रूर बता देते। वो बूढ़े वालिदैन दोनों हाथ जोड़े माफ़िया मांग रहे थे और मगर ज़ुबैर खानज़ादा के सर पर जुनून सवार था। मुलाजिम उसके हुक्म पर बेदर पे लाठियाँ डंडे उन दोनों ज़ईफ़ माँ बाप पर बरसाए जा रहे थे। अस्मारा बेगम का दिल दहल कर रह गया। क्या कर रहे हो ज़ुबैर, बस कर दो, उनका क्या कसूर है? उन्होंने बेटे को रोकना चाहा मगर उसने हाथ उठाकर अपनी माँ को कुछ भी कहने से रोक दिया था। कसूर उसका यही है कि वो हवेली की इज्जत को अपने साथ भगा कर ले गया है और खुमियाजा तो उसे भरना पड़ेगा। वो यहाँ नहीं है तो क्या हुआ, ये दोनों तो हैं, कभी ना कभी तो वो पलट कर आएगा ही। वालिदैन से मिलने और जब उसे पता चलेगा कि उसके वालिदैन को मैंने ख़त्म कर दिया है तो उसे जो तकलीफ हो वही चाहता हूँ मैं, उसने जेब से हथियार निकालते कहा था। सोफे के पास खड़ा इब्राज बाप को इस रूप में देखकर साकित रह गया। उसी के सामने ज़ुबैर खानज़ादा ने अपने बाप में मौजूद हथियार से 2 शोले उगले और सामने तड़पते 2 बूढ़े वजूद साकित हो गए। अस्मारा बेगम ने दहल कर अपने दिल पर हाथ रख लिया और इब्राज उसकी निगाहों में ये मंजर जैसे जम कर रह गया। वो पहला दिन था जब उससे अपने बाप से नफरत महसूस हुई। किसी के जुर्म की सज़ा किसी को देना इंसाफ नहीं था और उसका 5 साला ज़हन ये बात जानता था। मिनहाज के वालिदैन को ख़त्म करके भी ज़ुबैर खानज़ादा का जुनून ठंडा नहीं हुआ। अस्मारा बेगम समझ रही थी कि शायद मामला ख़त्म हो गया है, मगर ये उनकी भूल थी। दिन गुजरते रहे। निम्रा के कमरे को उन्होंने ताला लगा दिया और इब्राज बड़ा होता गया। 3 बरस गुजर गए। 3 बरस के बाद एक सर्द सी शाम में वो तस्बीह लिए चाय नमाज पर बैठी थी जब उन्हें नीचे से आती आवाज़ों ने चौंका दिया। ये आवाज़ तो निम्रा की थी। वो घबरा कर उठ खड़ी हुई। चाय नमाज समेटे बगैर वो लपक कर कमरे से बाहर निकली और उन्हें अपनी आंखों पर यकीन आया। नीचे हवेली में निम्रा ही थी और मुस्कुराते चेहरे के साथ उसने हाथों में एक छोटी सी बच्ची को उठा रखा था। देखने में जो 2 साल की मालूम होती थी, सुर्ख और सफ़ेद रंगत वाली वो बेहद हसीन बच्ची निम्रा की बेटी थी और अस्मारा बेगम को अपनी आंखों पर यकीन आया। धड़कते दिल के साथ वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आई। निम्रा उन्हें देखते ही उनके गले से जा लगी। अस्मारा बेगम की आंखों से आंसू बह निकले। तो यहाँ क्यों आई है निम्रा? तेरा भाई तुझे जान से मार देगा, चली जाओ यहाँ से, अभी और इसी वक्त चली जाओ। उन्होंने कपकपाते हाथों से निम्रा को वापस जाने के लिए कहा मगर वो हंस पड़ी। भाई मुझे नहीं मारेंगे अम्मा, वो खुद ही तो मुझे यहाँ लेकर आए हैं। मुझे और मिनहाज को उन्होंने कबूल कर लिया है। आज सुबह जब भाई के आदमियों ने हमें ढूंढ निकाला तो मुझे भी यही लग रहा था कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे, मगर भाई ने मेरे सर पर हाथ रखकर कहा कि मैं उनके साथ वापस हवेली चलूं, आपसे मिलूं। उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया है। अम्मा के दोनों हाथ थामते हुए इंतहाई खुशी से कह रही थी। अस्मारा बेगम ने बेयकीन निगाहों से उसे देखा और वो उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी, खुशी से चहकते हुए चेहरे के साथ, और अचानक ही फिजा में एक धमाके की आवाज़ गूंजी। अस्मारा बेगम का दिल थक सा रह गया और निम्रा का मुस्कुराता हुआ चेहरा तारीख हो गया। अस्मारा बेगम ने उसको अपनी आंखों के साथ लहू में नहाते और ज़मीन पर गिरते देखा था। बच्ची उसके हाथ से छूटकर नीचे जा गिरी थी और अस्मारा बेगम घबरा कर 2 कदम पीछे हटी। सामने ही ज़ुबैर खानज़ादा खड़ा था, उसका आतिश हथियार
اس کے ہاتھوں میں تھا اور اسی سے نکلنے والی گولی نے چند لمحے پہلے نمرا کو خالق حقیقی سے ملا دیا۔ ساتھ کھڑا منہاج چلاتے ہوئے نمرا کے وجود پر جھکا۔ وہ چلا رہا تھا، رو رہا تھا، نمرا کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر ہمیشہ کے لیے اس کی آنکھیں ساکت ہو چکی تھی۔ زبیر خانزادہ کے ہاتھ میں موجود اس ہتھیار نے اب رخ منہاج کی جانب کیا۔ دروازے کے بیچ میں کھڑے ابراج نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور وہ باپ کو دوسری بار یہ سب کچھ کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ باپ کا جو امیج اس کی نگاہوں میں تھا وہ آج بری طرح سے چکنا چور ہونے والا تھا۔ ایک اور دھماکہ ہوا، روتے تڑپتے منہاج کا وجود بھی ساکت ہو گیا۔ اسمارا بیگم نے ریت کی طرح اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو پھسلتے دیکھا۔ تم کیا سمجھی تھی کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا؟ زبیر خانزادہ کسی کو معاف نہیں کرتا، تمہیں حویلی میں لا کر ہی مارنا چاہتا تھا، میں اسی لیے تمہیں یہاں لے کر آیا تھا۔ اور نفرت بھرے انداز میں کہتا زبیر خانزادہ الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ اسمارا بیگم نے کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ اپنے پیچھے چھپائی اس 2 برس کی بچی کو دیکھا۔ زمین پر گرتے ہی وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور اس کے سر پر معمولی چوٹ لگی تھی۔ شاید زبیر خانزادہ کو اس بچی کا دھیان ہی نہیں رہا۔ اسمارا بیگم کپ کپاتے ہاتھوں کے ساتھ بچی کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئی۔ انہوں نے ایک ہاتھ میں سختی سے ابراج کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اور کیا ہوا اماں جان؟ وہ دادی کو پہلی دفعہ اتنا گھبرایا ہوا دیکھ رہا تھا۔ یہاں بیٹھو ابراج اور کہیں مت جانا۔ بچی کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے وہ الٹے قدموں باہر نکل گئی۔ ان کے باہر جانے کی تھوڑی ہی دیر کے بعد اس 2 سالہ بچی کو ہوش آ گیا تھا۔ وہ رونے لگی اور ابراج 7 برس کا تھا اور سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بچی کو کیسے چپ کروائے، لیکن اسے گول مٹول سی بچی بہت پیاری لگ رہی تھی اور جس کے ماں باپ کو کچھ دیر پہلے ختم کر دیا گیا۔ اپنی گود میں اسے اٹھاتے وہ چپ کروانے کی کوشش کرنے لگا۔ اسمارا بیگم گھنٹے بعد واپس آئی تو اس کے ساتھ حویلی کی ایک ملازمہ تھی۔ وہ جلدی جلدی زیورات کے ڈبے میں سے زیورات نکال کر ایک پوٹلی میں جمع کر رہی تھی۔ یہ سب لے جاؤ زینب اپنے ساتھ، اور اس بچی کو بھی لے جاؤ، کہیں بھی چھپ سکتی ہو اور چھپ جانا، اس کی پرورش کرنا، میں ایک دن اپنی امانت واپس لے لوں گی۔ وہ جلدی جلدی کہتے ہوئے زیورات اور روپیہ اس ملازمہ کے ہاتھ میں تھما گئی۔ ملازمہ نے بچی کو اٹھانا چاہا تو وہ یکدم بولی، ابھی رکو۔ دروازہ بجا اور حویلی کا ایک پرانا وفادار ملازم اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں نکاح نامہ تھا۔ یہاں پر انگوٹھا لگاؤ، جلدی کرو۔ ابراج ان کے حکم پر خاموشی سے اس 7 سالہ ابراج اور 2 سالہ شبانہ کے انگوٹھے اس نکاح نامے پر لگا دیے گئے تھے۔ اسمارا بیگم نہیں جانتی تھی کہ اسی طریقے سے کیا گیا نکاح اسلام میں قابل قبول ہے یا نہیں، مگر وہ تو بس یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح سے اس بچی کا حویلی کے ساتھ کوئی ناتا جڑا رہے تاکہ کسی روز وہ اسے حویلی واپس لے آئیں۔ زینب رات کی تاریکی میں ہی بچی کو لے کر نکل گئی تھی اور ابراج وہ 7 سالہ لڑکا ساکت نگاہوں سے یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ گہری سانس لے کر اسمارا بیگم ماضی سے حال میں واپس آئی۔ انہوں نے نگاہیں اٹھائی اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ بوڑھا وجود کانپ رہا تھا اور سامنے بیٹھے ابراج کے چہرے پر ایک زخمی سا تاثر پھیلا تھا۔ یہ سب آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا اماں جان؟ میں تو بھول بھی گیا تھا وہ نکاح والی بات۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا اور بے چینی سے وہ اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اسمارا بیگم کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اچانک ہی وہ پلٹا۔ کہاں ہے وہ؟ میں اس سے معافی مانگوں گا، قانونی طریقے سے اسے اپنی بیوی بناؤں گا اور اس بار مجھے کوئی نہیں روک سکتا، وہ 2 ٹوک انداز میں کہتے ہوئے لاؤنج میں سے باہر نکلا۔ مگر قسمت ایک دفعہ پھر ابراج پر مسکرائی۔ حویلی کا کون سا حصہ تھا جو ابراج خانزادہ نے نہ دیکھا ہو؟ ملازموں کے کوارٹر، کمرے، حتیٰ کہ پرانے سٹور روم اور پرانے تہخانے تک کھلوا کر اس نے دیکھ لیے تھے، مگر اس کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔ شاید اب وہ مجھے کبھی نہ ملے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رہے۔ شرمندگی کا ایسا احساس تھا جو اسے اندر سے چیرے جا رہا تھا اور جسے وہ تلاش کر رہا تھا۔ وہ اسے ملتی بھی کیسے؟ سیاہ رات کی تاریکی میں وہ حویلی سے نکلی تھی اور اپنے آنسو پونچھے لڑکھڑاتے قدموں سے اس نے ابراج خانزادہ کے کمرے کا دروازہ بند کیا تھا۔ اس نے مڑ کر ایک آنسو بھری نگاہ حویلی پر ڈالی جس نے اسے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ حویلی کے دالان میں کسی ملازمہ کی سیاہ چادر صوفے پر دھری تھی۔ بغیر ایک لمحے کی دیر کیے شبانہ نے وہ چادر اپنے گرد لپیٹ لی اور اس کی بڑی بڑی سنہری آنکھوں میں آنسو اب خشک ہو چکے تھے۔ اسی سیاہ چادر سے خود کو ڈھانپے وہ ہمیشہ کے لیے اس حویلی سے باہر نکل آئی۔ یہ حویلی میرے نصیب میں نہیں، جس طرح میری ماں کو اس حویلی نے صرف دکھ اور موت دی تھی، میرے لیے بھی اس حویلی میں سوائے ذلت کے اور کچھ بھی نہیں لکھا تھا۔ اماں زینب آپ کو مرنا نہیں چاہیے تھا۔ باہر نکلتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، مگر آخر کتنی دیر تک روتی؟ جب روتے روتے تھک گئی تو اٹھ کر ایک سمت کو چلنے لگی۔ شکر تھا کہ اسے حویلی کے کسی ملازم نے باہر نکلنے سے روکا نہیں تھا۔ اندھیری سڑک پر وہ تب تک چلتی رہی جب تک صبح کا اجالا نمودار نہیں ہو گیا تھا۔
शहर को जाने वाली बस ने जो सड़क पर एक औरत को जाते देखा तो कंडक्टर ने आवाज लगाकर पूछा कि कहाँ जाना है बेबी। शबाना चौंक कर पलटी। जाना तो उसे पता नहीं कहा था, लेकिन एक बात तो तय थी, वो उस हवेली से दूर जाना चाहती थी। बिना एक लफ्ज कहे वो बस में सवार हो गई। बेबी जी कराया। कंडक्टर सवारियों के पास से होता हुआ उसके पास आया तो शबाना बुरी तरह से चौंकी। उसके पास तो एक फूटी कोड़ी भी ना थी। कंडक्टर मशकूक निगाहों से उसे देख रहा था और इससे पहले कि उस बस में भी उसका तमाशा बनता, शबाना ने कपकपाते हाथों से अपने दाएं हाथ की तीसरी उंगली में मौजूद वो अंगूठी खींच निकाली। मेरे पास किराया नहीं है भाई, मगर मुझे शहर जाना है, आप प्लीज़ ये रख लीजिए। शबाना ने अंगूठी उसकी तरफ बढ़ाई और वो दुबला पतला सा कंडक्टर हैरानी से उसे देखता रह गया। सीट पर बैठी हुई शबाना की आंखों में ऐसी बेबसी और आंसू थे कि वो चाहकर भी इनकार ना कर पाया। उसने खामोशी से हाथ बढ़ाकर अंगूठी ले ली और वो भारी सोने की अंगूठी थी जिसके दरमियान में नीले रंग का पत्थर था और उस नीले पत्थर के ऊपर कुछ खुदा हुआ था। गुनगुनाते हुए कंडक्टर ने अंगूठी जेब में डाली और गहरी निगाह शबाना पर डालता हुआ आगे बढ़ गया। वो अपनी स्याह चादर को खुद पर लपेटती सीट पर पुश से टेक लगाकर बैठ गई। पता नहीं जिंदगी ने आगे उसे कौन सा रुख दिखाना था। बस कराची के स्टॉप पर रुकी तो जब सारी सवारियां उतर गई, न चाहते हुए भी शबाना को भी नीचे उतरना पड़ा और वो उस शहर से वाकिफ थी। जिंदगी के 18 साल उसने उसी शहर में गुजारे थे। यहाँ ही तो अम्मा ज़ैनब उसे लेकर आई थी जब उन्हें हवेली से इस्मारा बेगम ने शबाना को सौंप कर भगा दिया था। एक कर्ब की लहर शबाना के वजूद में जागी और मुख्तलिफ गलियों से गुजरते सड़कों पर चलते चलते उसे कई घंटे बीत गए। थकावट से उसका रोम रोम दुख रहा था। यूं लगता था कि पैरों में आबले पड़ गए हों और रो रो कर उसकी आंखें खुश्क हो चुकी थी। शाम ढल रही थी जिस वक्त वो उस छोटे से मोहल्ले के घर के सामने आकर रुकी। दरवाज़ा बंद था और शबाना ने दरवाज़ा खटखटाया। कुछ ही देर के बाद दरवाज़ा खुल गया। दरवाज़ा खोलने वाली एक मुअम्मर औरत थी, सर पर दुपट्टा, हाथ में कुरान पाक और आंखों पर लगा नज़र का चश्मा। शबाना को देखते ही उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो शबाना की कुरान पढ़ाने वाली उस्तानी थी। उस पूरे जहां में शबाना को सिवाय उस पर और किसी पर भरोसा ना था और सायरा बाजी ने एक लफ्ज़ भी कहे बगैर शबाना को अंदर आने दिया। ये लो पानी पियो। सायरा बाजी ने गिलास में पानी शबाना की तरफ पानी बढ़ाया और एक ही सांस में वो सारा गिलास खाली कर गई। सायरा बाजी उसे देकर रह गई। बिखरे बाल, आंखों का काजल फैला हुआ, बड़ी बड़ी आंखों में तैरता हुआ खौफ और गर्द से हटा शबाना का वजूद। ज़ैनब बहन के इंतकाल के बाद तुम अचानक कहाँ चली गई थी और ये तुमने अपना क्या हाल बना रखा है? तुम ठीक तो हो? मुझे लगा तुम अपने शौहर के पास हवेली चली गई हो। सायरा बाजी ने उसके सामने बैठते हुए कहा। शौहर के नाम पर शबाना की आंखों में आंसू उमड़ने लगे। एक तल्ख सी मुस्कुराहट से उसने अपना सर झटका और शौहर? मेरा कोई शौहर नहीं है और न ही किसी हवेली से मेरा कोई ताल्लुक है। वहाँ इंसान नहीं जानवर बसते हैं जो कमज़ोरों पर अपनी ताकत का रूप जमाते हैं। वहाँ न तो इज्जत महफूज है और न ही जान। उन लोगों ने मेरी माँ को जान से मार डाला और मुझे। वो बात मुकम्मल न कर सकी। आंखों में आंसुओं से फूट फूट कर वो रोने पर मजबूर हो गई। सायरा बाजी जैसे सारी बात समझ गए और उन्होंने आहिस्ते से शबाना को अपने साथ लगा लिया। किसी को पता है कि तुम मेरे घर आई हो? सायरा बाजी के पूछने पर शबाना ने नफी में सर हिला दिया। नहीं, आपके मुतालिक किसी को कुछ नहीं पता। जिस घर में अम्मा ज़ैनब के साथ में रहती थी वो घर यहाँ से कई गलियाँ छोड़कर है और मेरा नहीं ख्याल कि वो लोग यहाँ तक पहुँच सकेंगे। सायरा बाजी ने उसकी बात पर सर हिला दिया। वो अपनी सिसकियाँ दबाती खुद पर काबू पाने की कोशिश करती रही। काफ़ी देर बाद उसके आंसू थमे तो सायरा बाजी ने उसे अपना एक जोड़ा निकाल कर दे दिया। वो खामोशी से नहाकर कपड़े तब्दील करके आ गई और सफ़ेद रंग के सादा से जोड़े में उसका सुगवार हुस्न उसे अलग ही कोई रूप दे रहा था। इस बात से वो बेखबर थी कि उसे सैकड़ों मील दूर वो पागलों की तरह से ढूंढ रहा है। शबाना करवट लेकर सोने की कोशिश करने लगी। उसे सायरा बाजी के पास आते हुए एक हफ्ता गुजर गया था और उस एक हफ्ते में उसके जहन से इब्राज और उसका वहशत भरा लम्स जाकर ही नहीं दे रहा था। हवेली का जब भी जिक्र होता तो वो बुरी तरह से खौफसदा हो जाती। उसे याद था होश संभालने पर उसने अपने आसपास सिवाय ज़ैनब के किसी और को नहीं देखा था। उन्होंने उसे अच्छे स्कूलों में तालीम दिलवाई। कहने को तो वो एक पसमानदा से इलाके के छोटे से घर में रहती थी, मगर उनके घर में ज़िंदगी की हर सहूलत थी। बड़े अरसे बाद शबाना को पता चला कि ये सहूलत हवेली वालों के मरहून मन्नत है। इस्मारा बेगम अपनी नवासी से लाताल्लुक नहीं हुई थी। वो हमेशा उसकी खैर खबर रखती थी। वो जब भी कभी मिलने के लिए आती तो शबाना को ये याद ज़रूर दिलाती कि उसका शौहर हवेली में उसका इंतज़ार कर रहा है। वो सिर्फ मुनासिब वक्त के इंतज़ार में है। और इब्राज खानज़ादा के नाम पर हमेशा ही शबाना के दिल की धड़कन तेज़ हो जाती।
जिंदगी के 20 बरस उसने उसी के नाम की माला जपते हुए गुजारे थे, और जब अम्मा ज़ैनब का इंतकाल हुआ उसने अस्मारा बेगम के दिए हुए फ़ोन पर नंबर पर पहली दफ़ा फ़ोन किया। घबराओ मत, मैं कल शाम तक पहुंच जाऊंगी। इस हवेली में अब तुम्हें आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तुम मेरे इब्राज की दुल्हन हो, तुम्हें तो अब यहाँ आना ही है। अस्मारा बेगम की संजीदा आवाज़ पर उसने नम आंखों के साथ फ़ोन रख दिया। अम्मा ज़ैनब को मोहल्ले वालों ने ही दफन करवाया और वो तन्हा बैठी थी जब अस्मारा बेगम घर में दाखिल हुई। रुकने का वक्त नहीं है, जल्दी चलो। इब्राज शहर गया हुआ है और अपने कुछ दोस्तों को एयरपोर्ट से उसने लेना है और उसके वापस आने से पहले हमें घर पहुंचना है। वो उसका हाथ थामकर उसे अपने साथ हवेली ले गई और हवेली की शान शौक का देखकर वो पहली दफ़ा दंग रह गई थी। यही वो जगह थी जहाँ उसकी माँ को मारा गया था। उसके चेहरे पर अजीब सी तासुरात देखकर अस्मारा बेगम ठटक गई। और मैं समझ सकती हूँ बेटा, तुम्हारे दिल पर क्या गुजर रही है। शायद तुम्हें इस हवेली से नफरत महसूस हो, मगर ये सच है कि इस हवेली के दरो दीवार अब वैसे नहीं रहे। जुबैर खानजादा को तो एक अरसा हुआ फालिज जैसी बीमारी ने जकड़ रखा है। वो तो सिर्फ बिस्तर का होकर रह गया। सारी अकड़ अना और गुरूर खाक में मिल गया है उसका। उस हवेली और ज़मीनों का सारा इंतज़ाम अब इब्राज संभालता है। अस्मारा बेगम ने मुस्कुराते हुए उसे बताया था। वो सर झुकाकर बैठी रह गई और अस्मारा बेगम ने सर तपाऊं उसका जायजा लिया। अब से तुम इस हवेली की बहू हो। मैं 1-2 दिन में तुम्हारी और इब्राज की रुखसती का बंदोबस्त भी करती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं अपनी निगाहों के सामने तुम्हारे और इब्राज का निकाह कानूनी तरीके से पढ़वाऊंगी ताकि मेरे दिल को तसल्ली हो जाए। उन्होंने मोहब्बत से उसे देखते हुए कहा। अच्छा जाओ, ये वाले कपड़े पहन कर आ जाओ। और उन्होंने सुर्ख रंग का एक बेहद खूबसूरत जोड़ा उसकी तरफ बढ़ाया। इब्राज को सुर्ख रंग बहुत पसंद है, देखना तुम्हें इस जोड़े में देखेगा ना तो बहुत खुश होगा। अस्मारा बेगम की बात पर उसने छींप कर सर झुकाया। वो कपड़े तब्दील करके आई तो चंद लम्हे तक अपना आप ही उसे पहचाना न गया। लंबा कद, खूबसूरत सरापा, सुनहरी आंखें जो इब्राज के नाम पर ही लो देने लगती थी। ये लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। तो मेरी नवासी भी हो और मेरे इब्राज की दुल्हन भी, इसीलिए मैं तुम्हें अपनी खानदानी अंगूठी दे रही हूँ। ये मुझे मेरी सास ने दी थी। इसमें लगा हुआ पत्थर बहुत नायाब है, इसकी हिफाजत करना। अस्मारा बेगम ने उसके हाथ में नीले नगीने वाली अंगूठी पहनाई तो वो तहैयर जरा सी अंगूठी को देखती रह गई थी। अब यहाँ बैठ जाओ, जैसे ही इब्राज यहाँ आएगा मैं उसे तुम्हारा बता दूंगी। अस्मारा बेगम ने उसे कहा तो वो खामोशी से करवट बदल कर लेट गई, मगर उनका इंतजार ही रहा। अपने आम वक्त पर भी इब्राज हवेली वापस न आया और वो तो थक हार कर सो गई, मगर अस्मारा बेगम बेचैनी से जागती रही। और रात 2 बजे तक जब इब्राज घर में दाखिल हुआ तो उसने चाय की फरमाइश की तो अस्मारा बेगम मुस्कुरा उठी। यही बेहतरीन वक्त था मियाँ बीवी को एक दूसरे से मुतारिफ करवाने का। यकीनन इब्राज उस वक्त अपनी बीवी को देखकर बहुत खुश होगा और वो दिन भर का थका हारा है, शबाना को देखेगा तो उसकी सारी थकावट उतर जाएगी। अस्मारा बेगम ने सोचते हुए उससे इब्राज के लिए चाय लेकर जाने का कहा। वो धड़कते दिल का साथ उसके कमरे तक तो चली गई। अस्मारा बेगम ने कहा था कि पहली मुलाकात है, ज्यादा देर मत बैठना, बस उसे अपना नाम बताकर वापस आ जाना, वो यकीनन तुम्हें पहचान जाएगा। मगर इब्राज के कमरे में दाखिल होते ही जो कयामत उस पर टूटी थी उसे वो अब तक भुला नहीं पा रही थी। उसने सख्ती से अपनी आंखें मींच ली, यूं लगा जैसे कांच की गई किरचियां उसकी आंखों में चिप गई हों। बाजी सायरा अपने घर में बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया करती थी। चंद दिन बेजारी से गुजारने के बाद शबाना को अपना आप एक बोझ सा महसूस होने लगा और उस दिन वो सायरा बाजी की इजाज़त से ही नौकरी की तलाश में घर से निकली। शुक्र था कि 2 ब्लॉक छोड़कर उसे एक हॉस्टल में लड़कियों की केयर टेकर के तौर पर मुलाजमत मिल गई थी। शुक्र का सांस लेते वो पलट कर वापस आई तो गली में दाखिल होते ही बुरी तरह से ठटकी। सारा बाजी के घर के दरवाजे पर स्याह रंग की बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी। शबाना का दिल एक पल के लिए धड़कना ही भूल गया। ये गाड़ी उस मोहल्ले में से किसी की ना थी और वो अच्छी तरह पहचानती थी। उसी गाड़ी में अस्मारा बेगम उसे लेने के लिए उसके घर आई थी। वो मुश्किल खुद को संभालती वो उल्टे कदमों वापस भागी। वो यहाँ भी आ गया, वो मेरे साथ फिर वही सब कुछ करेगा। मैं उसका सामना नहीं कर सकती, आखिर ये मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देता। वो बेबसी की आखिरी नहज पर थी और सारा बाजी के घर का ठिकाना भी उसे छूट चुका था। अब उसे अपने लिए नई जय पनाह ढूंढनी थी। ये तो तय था कि अब कभी वो पलटकर हवेली वापस नहीं जाएगी और उल्टे कदम दौड़ते उसी हॉस्टल तक वो चली गई। हॉस्टल की मैनेजमेंट उसे वापस आते देखकर बुरी तरह से हैरान रह गई। क्या मुझे इसी हॉस्टल में रिहाइश मिल सकती है? उसने फूलती सांसों के दरमियान कहा। शायद उसकी किस्मत अच्छी थी कि कुर्सियों पर बैठे उन सारे अफसरान ने एक दूसरे की शक्ल देखी। क्यों नहीं, ये हॉस्टल मुसीबत ज़दा लड़कियों की मदद के लिए तो बनाया गया है। अगर आप यहाँ रहना चाहती हैं तो आपको यहाँ के तमाम तर अखराजात अदा करने होंगे। गहरी सांस लेते हुए शबाना ने
उनसे अपने तमाम तर अखराजात तनख्वाह में से ही कटवाने का एग्रीमेंट कर लिया था। उसे हॉस्टल में एक छोटा सा कमरा दे दिया गया। यहाँ कम से कम वो इब्राज के साइज से भी छुप कर रह सकती थी। दिन भर सख्त ड्यूटी करने के बाद रात को बिस्तर पर लेटती तो आंखों में एक नींद की बजाय आंसू आ जाते। कॉलेज की लड़कियां हैरत से उसे देखती। कितनी कम उम्र हो तुम, और तुम्हें तो हर वक्त हंसता मुस्कुराता रहना चाहिए। इतना हुस्न मेरे पास होता तो मैं तो खुशी से हवाओं में उड़ती, लेकिन तुम हो कि हर वक्त मुंह बस उड़े रखती हो। लड़कियां उसे देखकर कहती तो वो अफसरदगी से मुस्कुरा देती। उन्हें क्या बताती कि जैसे जिंदगी भर उसने अपनी इज्जत का निगरान समझा, उसी ने उसे वो जख्म दिए जो कभी सिलने वाले ना थे। हॉस्टल में शिफ्ट हुए उसे 1 महीना हो चुका था और उसने पलट कर दोबारा सायरा बाजी के घर का रुख न किया। उससे पता था कि वहाँ की सख्त निगरानी हो रही होगी। हवेली वाले अपना शिकार इतनी आसानी से नहीं छोड़ते थे और वो उनका शिकार ही तो थी। ये और बात थी कि ये शिकार उनकी दस्तरस से निकलकर दूर भाग गया था। वो अपनी ड्यूटी खत्म करके कमरों पर एक तायराना निगाह डालते अपने कमरे की सिमत जा रही थी जब उसे रेलिंग के साथ एक लड़की खड़ी नजर आई। सोने का वक्त हो गया है, आप प्लीज अपने कमरे में जाएं, शबाना ने नरमी से कहा और तभी वो चौंकी। वो लड़की बुरी तरह से सिसक रही थी। क्या हुआ तुम्हें, तुम क्यों रो रही हो? शबाना बेख्तियार ही उसके पास चली गई। वो 30 और 35 के दरमियान उम्र की लड़की थी। शक्ल से लगता था कि कहीं नौकरी करती है, मगर उस वक्त वो बुरी तरह से रो रही थी। तुम्हें मैं क्यों बताऊं कि मैं क्यों रो रही हूँ? तुम तो इंतजामिया का हिस्सा हो, तुम्हें तो लगेगा कि मैं सिर्फ ड्रामे के लिए आंसू बहा रही हूँ, उस लड़की ने तल्खी से कहा। शबाना हक्का बक्का रह गई और बोली, ऐसी बात नहीं है, तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर तुम्हें क्या परेशानी है? शबाना का हसास दिल उसकी परेशानी पर बेचैन हो गया। लड़की ने अपने बहते आंसू साफ किए और उसकी तरफ पलटी। मेरी बूढ़ी माँ ओल्ड एज हाउस में रहती हैं। अभी कुछ देर पहले मुझे उनका फ़ोन आया है कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रही हैं और वो मरने वाली हैं, और मैं यहाँ हॉस्टल के उसूलों में फंसी हूँ जहाँ शाम 6 बजे के बाद लड़कियों को बाहर निकलना अलाउड नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम कोई गलत काम करने के लिए बाहर जा रहे हैं। मैं 1000 बार कह चुकी हूँ इंतज़ामिया से कि मैं अपनी माँ से मिलने जा रही हूँ। अगर उन्हें मसला है तो मेरे साथ किसी को भेज दें, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। लड़की एक दफ़ा फिर फूट फूट कर रोने लगी। शबाना का दिल सदमे से चूर हो गया और अचानक उस लड़की ने सर उठाया। तुम भी तो इंतज़ामिया का हिस्सा हो, अगर तुम मेरे साथ चली जाओ तो गार्ड हमें नहीं रोकेगा। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी माँ को एक नज़र देखने के बाद मैं वापस आ जाऊँगी। उसने अचानक शबाना के दोनों हाथ थाम लिए। शबाना का दिल धक से रह गया। मैं कैसे जा सकती हूँ? हमें किसी बड़े ऑफिसर से बात करनी चाहिए, शबाना ने उसे कहा और उस लड़की ने एक झटके से उसके दोनों हाथ छोड़े। देखा, मैंने पहले कहा था कि तुम मेरी मदद नहीं कर सकती। यहाँ पर हर कोई सिर्फ दूसरे का तमाशा देखता है। वो फिर से रुख मोड़कर रोने लगी और शबाना का दिल पसीज गया। उसकी अपनी ज़िंदगी इतनी जख्म थी कि वो दूसरे का दर्द बड़ी आसानी से महसूस कर सकती थी। गहरी सांस लेते उसने अपनी नौकरी दाव पर लगाने का फैसला कर लिया। ठीक है, चलो आओ हॉस्टल के पिछले गेट से जाते हैं ताकि किसी को पता न चल जाए। उसने रजामंदी जाहिर की और लड़की के चेहरे पर इत्मीनान बिखर गया। शबाना का हाथ पकड़े वो तेजी से सीढ़ियां उतरकर पिछली तरफ चली गई। हॉस्टल की पिछली तरफ आमतौर पर एक चौकीदार खड़ा होता था, मगर न जाने आज क्यों वो गैर हाजिर था और रास्ता साफ था। शबाना ने अपने पास मौजूद चाबियों में से एक चाबी लगाकर दरवाज़ा खोला और वो दोनों बाहर निकल गई। मैं किसी रिक्शे वाले को रोकती हूँ ताकि उस ओल्ड एज होम तक जाया जा सके, शबाना ने कहा और तेजी से वो रोड की तरफ बढ़ी। लेकिन अगले ही पल वो चौंकी। वो लड़की जो अंदर इतनी बेताब थी, मुसलसल रो रही थी। अब बिल्कुल सुकून से दोनों हाथ सीने पर बांधे खड़ी थी। शबाना ने मुड़कर उससे देखा और उसके अंदर खतरे की घंटी जोर से बजी, मगर देर हो चुकी थी। इससे पहले कि वो संभलती, एक भारी मर्दाना हाथ उसके नाक और मुंह पर जम गया। वो बुरी तरह तड़पी, लेकिन गिरफ्त मजबूत थी और चंद ही लम्हों बाद वो होशो हवा से बेगाना होती चली गई। न जाने कितनी देर तक वो बेहोश पड़ी रही और जहन पर से तारीकियों का पर्दा छटा तो बमुश्किल उसने आंखें खोली। हर चीज़ धुंधली धुंधली थी, कुछ भी वाज़ेह दिखाई नहीं दे रहा था और उसका सर भारी हो रहा था। लेटी रहो, रुकने की ज़रूरत नहीं। भारी मर्दाना आवाज़ पर वो बुरी तरह से झटका खाकर पलटी। ये आवाज़ उसने सुन रखी थी और वो उसे पहचानती थी। जोर से अपनी आंखें मसलते शबाना ने फिर से दाएं बाएं देखा। मंजर कुछ वाज़ेह हुआ। ये कमरा वो पहचानती थी और वही छत पर लटकता फानूस, वही मनकश लकड़ी का बना हुआ शानदार बेड। शबाना के रगों पे में खौफ की एक लहर सी दौड़ गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो घबरा कर पलटी और तभी उसकी निगाह बेड के साथ रखी कुर्सी पर बैठे उसी वजूद पर पड़ी। वो वही था, इब्राज खानज़ादा। दोनों बाजू सीने पर लपेटे मुस्कुराते हुए शबाना की सिम देख रहा था। शबाना का दिल धड़कना भूल गया। तो क्या वो उस तक पहुंच गया था? आखिरकार उसने अपने शिकार को पकड़ ही लिया था।
उसने सख्ती से अपनी आंखें मींच ली। अब क्या सलूक होगा उसके साथ? वही सलूक जो उसकी माँ के साथ हुआ था। वैसे ही उसके सीने में कई गोलियां उतार कर इब्राज खानजादा भी उसे मौत के घाट उतार देगा। उसकी आंखों से बेइख्तियार ही आंसू बहने लगे। ये लो जूस पियो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, उसने इंतहाई प्यार से कहा। शबाना ने बेयकीन निगाहें उठाकर उससे देखा। अगर मुझे मारना ही है तो अभी मार दें, ये सब तमाशे करने की क्या जरूरत है? मैं तो बिल्कुल हकीर हूँ। जिस तरह उस रात मैं खुद को नहीं बचा सकी थी, आज भी खुद को नहीं बचा पाऊंगी। और कौन गिरेबान पकड़ेगा आपका? हवेली वालों से कौन सवाल कर सकता है? भीगे लहजे में वो कहती मुश्किल खुद को जब्त कर रही थी। इब्राज खानजादा के लिए अपने दिल को संभालना मुश्किल हुआ। मैं नहीं जानता था शबाना कि मेरे मुतालिक तुम क्या सोचती हो, मगर उस रात मैं अपने इख्तियार में नहीं था। मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। चाहे तुम मुझे माफ़ करो या ना करो, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी ज़रूर मांगूंगा। बेशक तुम मेरी मनकूहा थी, लेकिन मुझे तुम्हारी मर्जी की इज्जत करनी चाहिए थी। उस रात दोस्तों के बढ़ावा देने पर मैंने जो नशा किया, उसका खुमियाजा मुझे अब तक भुगतना पड़ रहा है। मैं जितना तुमसे करीब होने की कोशिश करता हूँ, तुम उतनी दूर होती चली जाती हो। 18 साल मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया और शुरू में वो 2 साला बच्ची मेरी निगाहों के आगे से हटती ना थी। रफ्ता रफ्ता मैं ये बात तो भूल गया कि अम्मा जान ने मेरे अंगूठे का निशान किसी कागज़ पर लगवाया था, लेकिन तुम मेरे जहन से ना निकली। मैं हमेशा सोचता था कि अगर कभी तुम मेरे सामने आ गई तो मेरा रिएक्शन क्या होगा। शायद मैं भागकर तुम्हें गले से लगा लूँ या तुम्हारे जख्मी दिल पर मरहम रखने की कोशिश करूँ। जिस बच्ची ने मेरे सामने अपने माँ बाप को खोया था, उसका बचपन कैसा गुजरा होगा। मैं जानता था कि तुम्हारे साथ हुए जुल्म ने मेरे अंदर इस हवेली के खिलाफ नफरत पैदा कर दी थी, और इतनी नफरत जो मैं आज तक अपने अंदर से नहीं निकाल पाया। मैंने अपने अंदर से वो हर बुराई उखाड़ कर फेंक दी जिसमें से मुझे इस हवेली के उसूलों की बू आती थी। बाबा जान फालिद ज़दा होकर बिस्तर पर पड़ गए तो समझो इस हवेली से वो असर ही खत्म हो गया। मैंने उसके दरवाजे गरीबों पर खोल दिए और अपने लहजे को नरम कर लिया। मुझे लगता था कि मैं एक बेहतरीन इंसान बन गया हूँ, लेकिन उस रात मैं हार गया। मैं इंसान से फिर एक दरिंदा बन गया और शर्मिंदगी से सर झुकाए वो धीमे लहजे में कह रहा था। शबाना, जो उसकी जानिब से कोई फर्दे जुर्म आयद किए जाने की मुंतज़िर थी, उसे यूं कहते सुनकर गंग रह गई। क्या तुम मुझे माफ़ करोगी शबाना? क्या मेरी बीवी बनकर इस हवेली में रहोगी? क्या वो उसूल तोड़ने में मेरी मदद करोगे जो इंसान को इंसान कम और कोई हकीर मखलूक ज़्यादा समझते हैं? उसने सर उठाकर अचानक ही शबाना से सवाल किया। शबाना का दिल जोर से धड़क उठा। उस शख्स से उसने कितनी मोहब्बत की थी और ज़िंदगी के वो सारे बरस जो उसने छोटे से मकान में दिन गिनते हुए गुजारे थे, उसी शख्स के नाम के ही तो थे। हर पल उसने यही तो सोचा था कि कब वो अपने असली घर में जाएगी, और माँ का मरना तो उसे भूल चुका था। याद था तो बस इतना कि ये घर उस हवेली इब्राज खानजादा की थी। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा है, लेकिन तुम मेरी मनकूहा हो। यार, अगर उस रोज़ मैंने कुछ गलत कर भी दिया तो तुम मुझे माफ़ कर सकती हो। कल हमारा निकाह है और मैंने अम्मा जान को बता दिया था कि मैं तुम्हें वापस ले आया हूँ, और वो बहुत ज़्यादा खुश है। इब्राज खानजादा की बात पर शबाना का दिल जैसे हल्का फल्का हो गया था। वो अपने लोगों में लौट आई थी और उससे ज़्यादा उसे और क्या चाहिए था। इब्राज के मुतालिक जो गलत फहमियाँ उसके जहन में थी, उसकी चंद बातों से ही उन सब का असर ज़ाइल हो गया, और उसका नरम लहजा, मेहरबान आंखें और सबसे बढ़कर उसके मरहम रखते अल्फाज वो सब के सब बता रहे थे कि शबाना का तस्वुर उसके मुताल्लिक गलत था। गहरी सांस लेते ही शबाना ने अपने सारे खदशात सर से छटक दिए थे। ये लो, बहुत मुश्किल से उस कंडक्टर से वापस ली है। ये हमारी खानदानी अंगूठी है, और आइंदा कहीं जाना हो तो मुझसे पैसे ले लेना, ये किसी को मत देना। शरारती लहजे में कहते उसने वो नीले नगीने वाली अंगूठी शबाना के हाथ में पहना दी। वो झीम कर मुस्कुरा दी। चलो आओ, अम्मा जान से मिलकर आते हैं, शगुफ्ता अंदाज में कहते वो उठकर खड़ा हो गया और उसने शबाना की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। शबाना ने निगाह उठाकर उसके सिमत देखा। जज्बे लुटाती निगाहें, भरपूर मर्दाना वजाहत का मालिक ये शख्स उसका था, और एक दिलावेज मुस्कुराहट उसके लबों पर आ गई। अपना हाथ बढ़ाते उसने इब्राज के हाथों में दे दिया था, जिसे उसने इंतहाई मजबूती से थाम लिया।